Hello everyone, welcome to Koshish. We will discuss I Know Why the Caged Bird Sings today. This poem has been written by Maya Angelou. What are the adjectives you can associate with Maya Angelou? Powerful feminist. Where will you get this expression from? From your book, page number 28. So, Maya Angelou is a powerful feminist. Feminist means one who stands for women's right. Origin Afro-American ethnicity. Afro-American, it means she is an African born in America. So, what is her race? Afro-American ethnicity. Maya Angelou is a widely acclaimed author, poet, civil rights activist. She had an extremely traumatic childhood, very painful childhood, and her personal experiences are reflected in this poem. This poem is about raising one's voice against exploitations, against atrocities, discrimination. Here, racial discrimination has been mentioned, but this has a more universal appeal, and this poem relates to any kind of a discrimination that is practiced anywhere in the world. So this poem gives voice to the feeling of indignance. Indignance matlab something wrong has been done to me all around the world, wherever, be it caste discrimination, be it gender discrimination. So this is a voice of revolt against any voice of protest against any discrimination practiced anywhere in the world. Caged bird. Now there are two birds here in the poem. One is bird. So caged bird is a symbol of all African Americans and their right for freedom. So what does the caged bird symbolize? The caged bird symbolize all African Americans and their fight for freedom. It symbolizes the struggle that the darker complexion people, the Africans, they faced from the white people. This poem talks about freedom. I will follow Zero Pinto workbook for teaching you this poem, and PDF will be provided to you, material will be provided to you so that you can go through the material. Now what is has been presented in the poem? Maya Angelou tries to contrast. कॉन्ट्रास्ट मतलब इसका सिचुएशन अच्छा है, ये वाइट है तो वो ब्लैक है, ये रिच है तो वो पुअर है, ये कॉन्ट्रास्ट हो गया ऑपोजिट. द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड दैट इज फ्री. एक तरफ माया एंजेलो दिखा रही है कि फ्री बर्ड जो है वो फ्लाइट मतलब वो किस तरह से उड़ रही है, वो फ्रीली उड़ रही है, वो ट्री टॉप से माउंटेन टॉप से डाइव करती है नीचे, वो सनसेट वेस्टर्न स्काई की तरफ वो बढ़ती है टू बेद इन द सनसेट. वो कहीं भी किसी भी गार्डन में जाके किसी भी वर्म कीड़ा खा सकती है. वो एक सीजन एंजॉय कर रही है और वो दूसरे सीजन का वेट कर रही है, एक्सपेक्ट कर रही है. तो वो उसका डिजायर्स है और वो उन डिजायर्स को फुलफिल फ्रीली विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन कर रही है. वेयर इज द केज्ड बर्ड, जो चिड़िया केज में बंद है, विंग्स आर क्लिप्ड मतलब उसके पंख को काट दिया गया है. ये मेटाफोरिकल है, काट दिया गया है. पंख काट देना इसका मतलब फ्रीडम छीन लेना. बाई प्रोजेक्टिंग टू कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस, दो कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस को प्रेजेंट किया गया है, एक फ्री बर्ड का और एक केज्ड बर्ड का. ऑफ अ फ्री बर्ड एंड अ ट्रैप्ड बर्ड द पोएम मेटाफोरिकली alludes मतलब refers. The poem metaphorically refers to the differences between whites and African Americans. So what does it present? White people and African American people during the civil rights era. So setting of the story, civil rights era.
Maya Angelou was a celebrated poet, novelist, dramatist, actress, civil rights activist. Theme of the poem: freedom versus enslavement. फ्री बर्ड फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रहा है और केज बर्ड एनस्लेवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. रेसिज्म एंड स्लेवरी एंड वॉइस अगेंस्ट ऑपरेशन. इन कीवर्ड्स को याद रखोगे, दैट इज इनफ फॉर योर आईसीएसई. Now, this thing you need to understand. Jim Crow laws. जिम क्रो लॉज स्टैब्लिश किया था सिविल राइट्स के समय, दैट डोमिनेटेड द अमेरिकन साउथ फ्रॉम 1890 टू 1965. 1890 से 1965 70-75 साल ये लॉ प्रैक्टिस किया गया अमेरिका में. फॉर्मल सिस्टम ऑफ रेशियल अपार्थीड. अपार्थीड मीन्स डिस्क्रिमिनेशन. तो जिम क्रो लॉ क्या था? एक फॉर्मल सिस्टम था जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को प्रैक्टिस करता था. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कराया जाता था. इस लॉ, उसके लिए एक लॉ था जो ब्लैक पीपल के लिए अलग था और वाइट पीपल के लिए अलग था. इस लॉ का नाम क्या था? जिम क्रो लॉ. 75 इयर्स तक अमेरिका में प्रैक्टिस हुआ जिम क्रो लॉ. और ये क्या किया? फॉर्मली इट वाज अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ रेशियल अपार्थीड. इसमें लॉ निकाला गया था. जैसे तुम लोगों को याद होगा, हम जब स्टोरी चीफ सियाटल स्पीच पढ़ाए थे, तो चीफ सियाटल स्पीच में क्या बताया गया था कि पहले उनको ल्यूक्रेटिव प्रॉफिटेबल ऑफर्स देके उनके जमीन को छीन लिया जाता था और बताया जाता था कि आप लोगों को एक जगह दिया जाएगा रहने के लिए. उनको जगह दिया जाता था, फिर उनको डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता था कंप्लीटली कि अब जो उनके जगह पर इस्टेब्लिश्ड सिटी बना दिया गया. फिर लॉ पास होता था कि रेड इंडियंस उस सिटी में नहीं घुस सकते. अगर रेड इंडियंस उस सिटी में घुसे तो उनको डेथ सेंटेंस दे दिया जाता था, उनको गोली मार दिया जाता था. तो एक लॉ था जो कि रेड इंडियंस को सिटीज में आने से रेस्ट्रिक्ट करता था. उसी तरह से जिम क्रो लॉ था 1890 से 1965, 75 इयर्स तक, जिसमें क्या था? फॉर्मल कोडिफाइड सिस्टम ऑफ रेशियल अपार्थीड. इट सेग्रीगेटेड अफ्रीकन अमेरिकन्स बिकॉज ऑफ देयर स्किन कलर. द लॉज अफेक्टेड ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ डेली लाइफ. उस लॉ में क्या था? किस किस चीज को वो अफेक्ट करता था? स्कूल, पब्लिक टॉयलेट. जिस स्कूल में वाइट पीपल जाते, उधर अफ्रीकन अमेरिकन डार्क पीपल को अलाउ नहीं करता. पब्लिक टॉयलेट्स, पब्लिक पार्क, ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट्स, सब जगह रिस्ट्रिक्शन था कि व्हाइट्स के लिए अलग, ब्लैक्स के लिए अलग. जहां पर व्हाइट्स जाते हैं वहां पर ब्लैक्स का जाना अलाउड नहीं है. जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे इंडिया, तब भी ये सिस्टम था. कैसे ये सिस्टम था? डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड लिखा जाता था. सो एवरीथिंग वाज सेग्रीगेटेड. सो the status of the African Americans was nearly always inferior to that of white people. तो उनका status क्या था? Inferior. Subjugated and inferior treatment. ये caged word represent कर रहा है. Subjugated मतलब क्या? Oppressed. दबाना किसी को. Inferior treatment, that caged bird in the poem feels his wings are clipped. तो यहाँ पे पूछ सकता, why does the caged bird think that the wings are clipped? Because of the subjugated and inferior treatment. Now, Maya Angelou through this poem becomes the mouthpiece. Mouthpiece मतलब हम सबके लिए बोल रहे हैं. हम सारे अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए बोल रहे हैं, हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. So I am the mouthpiece. Maya Angelou becomes the mouthpiece of an entire African American community to portray the inhuman treatment meted out, given to them, to the African Americans. So words याद करना: mouthpiece, entire African American community, to portray the inhuman treatment meted out, given to them. To them मतलब क्या? To the African Americans. So
During that time, many songs were written like this I Know Why the Caged Bird Sing. ये सब क्यों लिखा जाता था? ताकि अफ्रीकन अमेरिकन जो है वो रास्ते पे आके जोर से ये गाना गाए। जैसे जब ब्रिटिशर्स राज करते थे तो इंडियंस सड़क पे उतर के वंदे मातरम या किसी भी तरह का कोई भी गाना देशभक्ति का गाते थे, जिससे क्या है कि कोई जो बाकी इंडियन सुनते थे उनके अंदर ये मोटिवेशन आ जाए कि हम लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। उसी तरह से इस तरह का सॉन्ग जो है आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग, इस तरह के सॉन्ग जो है गाया जाता था। क्यों गाया जाता था? ताकि इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले बाकी सबको। तो सड़क पे उतर के सब एक साथ गाते थे। तो लेट अस स्टार्ट द पोएम। आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। सो मुझे पता है केज बर्ड क्यों गाती है। सो इट इज अप टू यू टू थिंक व्हाई द केज बर्ड सिंग। मेरे हिसाब से द केज बर्ड सिंग्स बिकॉज इट कैन नॉट गो बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द केज। लाइक द अफ्रीकन अमेरिकन, तो अमेरिका का जो बाउंड्री है वो केज हो गया। उस केज के अंदर अफ्रीकन अमेरिकन को इल ट्रीट किया जाता था। फ्रीडम कब तक नहीं मिलेगा? जब तक सारी दुनिया में ये आवाज नहीं फैले। तो इसीलिए वो लोग गाना गा रहे हैं, वो लोग फ्रीडम का स्लोगन्स उठा रहे हैं ताकि इंटरनेशनल मीडिया इस चीज को बाहर ले जाए और सारी दुनिया को पता चले कि अमेरिका में क्या हो रहा है, और फिर सपोर्ट मिले इन लोगों को। और उस सपोर्ट से फ्रीडम मूवमेंट को बहुत बड़ा एक मोटिवेशन मिले, बहुत बड़ा सपोर्ट मिले। तो आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग बिकॉज इट्स फिजिकल मूवमेंट हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड, so it voices against oppression. So why is it singing? It is a voice against oppression. So I know why the caged bird sings. The caged bird sings to voice against oppression as its physical movements are restricted. A free bird leaps on the back of the wind. समझना इस चीज को, इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिन करो कि चिड़िया जो है वो छोटे से हिल क्लिफ में ऊपर में बैठी है, और जब विंड हवा का झोंका चल रहा है, जब तेज हवा का झोंका चलता है, तो चिड़िया को पंख फड़फड़ाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हवा का पुश जो है उसको फ्लोट करने देगा। अदरवाइज चिड़िया को पंख फड़फड़ाना पड़ेगा। अब सोचो लग्जरी, किस तरह का लग्जरी मिल रहा है। विंड ब्रीज चल रहा है, तो ये एक हिल से डाइव मारी नीचे की तरफ। जैसे ही वो डाइव मार के अपने विंग्स को फैला दी, विंग्स को फैला के हवा के साथ वो नीचे की तरफ जा रही है। तो ये हो गया एक लग्जूरियस डाइव, एक लग्जूरियस डाइव हो गया उसके लिए, एक प्लेफुल, एक प्लेजरेबल मोमेंट हो गया कि वो डाइव मार रही है। किसके ऊपर डाइव मार रही है? विंड के ऊपर चढ़ के नीचे की तरफ डाइव मार रही है और फ्लोट कर रही है। एक प्लेजर डाइव में जैसे ही वो नीचे की तरफ पहुंच रही है और विंड जब हल्का हो गया, जब लाइट हो गया विंड, तो उसको सपोर्ट करना पड़ेगा अपने आप को। तो वो फ्लैप करके विंग्स किस तरफ चली जा रही है? वेस्टर्न स्काई की तरफ चली जा रही है, बिकॉज वहां पे बहुत सुंदर सैफरन कलर, क्रिम्सन कलर फैला हुआ है। सनसेट हो रहा है और स्काई ब्यूटीफुली बेडेड है, सैफरन ब्यूटीफुली बेडेड है, ऑरेंज नाउ। इसीलिए वो पहले क्या कि वो प्लेजरेबल डाइव मारी विंड के ऊपर चढ़ के, और जैसे ही विंड डाई किया वो फ्लैप की विंग्स को अपने और किस तरफ चली गई? वो चली गई वेस्टर्न स्काई की तरफ, टू बेथ इन द सनलाइट, इन द सनसेट। तो ये सब लग्जरीज है जो फ्री बर्ड एंजॉय कर सकती हैं, बट केज बर्ड नहीं। तो वैसे ही द अमेरिकन्स वर, द व्हाइट अमेरिकन्स, दे वर फ्री टू मूव वेरेवर दे वांटेड, जस्ट लाइक द फ्री बर्ड, whereas the African Americans, they had to face several restrictions just like the caged bird. तो मेटाफोरिकल है entirely। मेरा सजेशन है ICSE में, ये 2020 में आ चुका है, I want my students to prepare these poems, but I do not want my students to attempt these poems because इसमें philosophical elements बहुत हैं, और हमेशा क्वेश्चंस जो तुम लोग सिलेक्ट करो वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तुम जितना सिलेक्ट करो वो उतना अच्छा होता है। कैसे उतना अच्छा होता है?
कि अगर हमसे पूछा गया अगर कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, तो अगर हम H2O बोल दें तो पता है H2 हमको फुल मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह का आंसर चूज करना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन चूज करो जिसमें ऑब्जेक्टिव आंसर्स मिल सके। तो कैसा 2020 में आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंह दिया था, पूछ रहा है कि व्हाट डू यू अंडर व्हाट डज द टाइटल सजेस्ट टू यू, तो अभी टाइटल को सजेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो गया। दूसरा इसके साथ पूछा था बैंगल सेलर्स, और तीसरा 2020 में पूछा था अबू बेन एडम। पढ़े हो तुम लोग पोएम बैंगल सेलर्स? बैंगल सेलर्स में कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच कलर इज एसोसिएटेड विद द मेडन, तो वहां पे तुमको पता है कि मेडन के साथ कौन सा कलर एसोसिएटेड है, उसको एक्सप्लेन करने नहीं बोल रहा है, तो वो ऑब्जेक्टिव हो गया। अगर मेडन के साथ जो भी कलर एसोसिएटेड है, रेड ब्लू येलो ऑरेंज, जो भी कलर एसोसिएटेड है, तुम जैसे ही वो दो कलर्स का या एक कलर का नाम जो भी पोएम में दिया हुआ है तुम आंसर कर दिए, तुमको पता है कि तुमको फुल मार्क्स मिल गया। What were the three inscriptions on the different cascades? तुमको पता है 3 inscriptions तो मेंशन कर दिए तो फुल मार्क्स मिलेगा। तो हमेशा चूज करना चाहिए ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको तुमको पता है कि पॉइंट मेंशन किए एंड यू गेट द मार्क्स। So this poem, last year also I suggested my students not to attempt this poem. However, I taught this poem very religiously because you should be prepared with everything, but you should make a very wise choice while answering. सो ये 2020 में आ चुका है, तो तुम लोगों को चिंता करने का जरूरत नहीं है, ये स्कूल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो। रिपीट करता है बट एक ही पोएम को 2 साल रिपीट ऐसे भी आईसीएसई आज दिन तक नहीं किया है। रिपीट आईसीएसई आज दिन तक कोई भी पोएम को रिपीट नहीं किया है। ये हम लास्ट 18 to 20 ईयर्स के पेपर्स को स्टडी करके बता रहे हैं, तो उस चीज के लिए निश्चिंत रहो। बट सपोज अगर तुम्हारा किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है, समझ ही सकते हैं 2020 है, कोरोना वायरस भी तुम लोग देख लिए, लॉकडाउन देखे, फिर अभी अम्फान आया, अभी निशार आ रहा है, तो कितना तकलीफ है वो तुम लोग समझ ही सकते हो। तो 2020 के जो बैच के स्टूडेंट्स हो तुम लोग समझ सकते हो, तुम लोग लाइफ तकलीफ से भरा हुआ है, तो जितना भी तकलीफ से भरा हो 2020 का क्वेश्चंस 2021 में रिपीट नहीं करेगा, घबराने का जरूरत नहीं है। तो आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंह, इसको पढ़ लो स्कूल एग्जाम्स के लिए, बट इसके साथ का पोएम देखो कितना इजी है, अबू बिन आदम इजी है, बैंगल सेलर्स इजी है। तो ये 3 पोएम को छोड़ के 7 पोएम्स तुम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो वो बहुत देखो एक्चुअली 9 पोएम्स सॉरी 6 पोएम्स पूछ लिया गया है। आफ्टर ब्लेनम 2019, द पेट्रियट 2019, 9 गोल्ड मेडल्स 2019, और क्वेश्चंस तो डिस्कस किए थे तुम लोगों के साथ 9 गोल्ड मेडल्स में। अगर नहीं भी किए थे, सॉरी आई थिंक कि तुम लोग मार्च में पढ़ाए थे तो हम डिस्कस किए थे 9 गोल्ड मेडल्स में क्वेश्चंस कैसा पूछा था। हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स वर देयर? 9 पार्टिसिपेंट्स। ओके, व्हाट वाज द लास्ट रेस? 100 मीटर्स रेस। सो ये सब चीज जो है बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है, बहुत सिलेक्ट करके अच्छे से चॉइस तुमको करना होगा। तो आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स मेरे चॉइस में नहीं आता है। टेंशन नहीं लेते लाइफ में, बहुत आराम से शांति से, अरे क्या होगा ज्यादा से ज्यादा रिपीट कर देगा, तो बाकी पोएम्स तो है हमारे पास। तो इसीलिए इसको स्कूल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो, बट इसको लेके टेंशन मत लो। ओके, तो बहुत सिलेक्टिवली तुमको पोएम्स चूज करना पड़ेगा, बहुत सिलेक्टिवली तुमको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, टॉपिक देखना पड़ेगा, कौन सा टॉपिक तुम अटेम्प्ट करना चाहते हो। तो फ्री बर्ड का इमेज मिला, किस तरह से वो हिल टॉप या फिर वो एक ट्री टॉप से डाइव मारता है विंड के सहारे, प्लेजर डाइव मारता है, और जब विंड फेड आउट हो जाता है तो वो विंग्स फ्लैप करके वेस्टर्न स्काई की तरफ चला जाता है टू बेथ इन द सनलाइट। तो ये इतना फ्रीडम एक्सपीरियंस करता है, जहां मन चाहे वहां जा सकता है। अ फ्री बर्ड लीव्स, स्प्रिंग्स फ्रीली, डाइव्स ऑन द बैक ऑफ द विंड, राइडिंग ऑन द बैक ऑफ द विंड, एंड फ्लोट्स डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम हवा, स्ट्रीम हवा, ऊपर से नीचे की तरफ हवा का झोंका जा रहा है, तो डाउनस्ट्रीम नीचे की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ द विंड करंट। डाउनस्ट्रीम क्या है? डायरेक्शन ऑफ द विंड करंट, तो ऊपर से नीचे की तरफ वो जा रहा है फ्लोट करते हुए, टिल द करंट एंड्स। और फिर विंड करंट, विंड का जो फोर्स है, स्ट्रेंथ है, जब वो फेड आउट हो जाता है तब तक वो प्लेजर डाइव एंजॉय करता है एंड डिप्स हिज विंग इन द ऑरेंज सन रेज। और उसके बाद वो क्या करता है? इट फ्लाइज टू द वेस्टर्न स्काई, डिपिंग इटसेल्फ, बेथिंग इटसेल्फ इन द ऑरेंज सन रेज ऑफ द सेटिंग सन एंड डेयर्स टू क्लीन द स्काई। और इस तरह से वो चाहे वो हवा से कूदे, वो स्काई की तरफ जाए, वो जमीन की तरफ जाए, उस
dares to claim the sky, इसका मतलब the entire sky belongs to it. Entire sky belongs to it. So it talks about unrestrained freedom that the free bird enjoys. Okay. So second stanza. But a bird that stalks down his narrow cage. Second stanza is a contrast. फर्स्ट स्टैंजा फ्री बर्ड के बारे में बताया, सेकेंड स्टैंजा केज्ड बर्ड के बारे में बताया. बर्ड दैट स्टॉक्स, स्टॉक का मतलब ये हो गया रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट. व्हाई? बिकॉज द पेरीमीटर ऑफ द cage is very small. So it's stock, it moves from here and there. So stock, this word itself expounds, describes the pathetic condition of the cage bird. It stalks, that is, moves in a restricted manner down the narrow cage. Narrow cage suggests the restricted life, the restrictions that African Americans, that were put on the African Americans, and there were set of things they could do, there were set of things they could not do. So this talks about the operation, the restrictions that the African Americans experience. So what does the cage bird do? याद रख लो वर्ड, stalks down the narrow cage. क्या करता है? Stalks down the narrow cage. और अगर पूछेगा मीनिंग तो describes the restricted movement of the bird. The movement, the free movement of the bird is restricted to the perimeters of the cage. Can seldom see through his bars of rage. It cannot see through, it cannot see beyond the bars. Bars मतलब iron bars, जो केज का जो bars है, steel bars, iron bars, पिंजड़े का जो bars है. Rage मतलब anger. तो ये bars जो है, ये bars क्या suggest करता है? ये bars captivity suggest करता है, enslavement suggest करता है, oppression suggest करता है. तो ये बार्स को देखते ही रेज, एक फीलिंग ऑफ इंडिग्नेंस आ जाता है, एक फीलिंग ऑफ इंसल्ट आ जाता है, एक फीलिंग ऑफ ऑपरेशन आ जाता है. इसलिए इट्स अ बार ऑफ रेज. इट सिंबलाइजेस ऑपरेशन, देयरफॉर इट इज अ बार ऑफ रेज. His wings are clipped. Wings are clipped मेटाफोरिकल है. clipped मतलब काट दिया गया है. wings को काटा नहीं है, बट wings होने के बावजूद भी नहीं हो सकती. तो इसका मतलब क्या? wings are clipped. तो wings are clipped मेटाफोरिकल है. that means movement is restricted, freedom is restricted, and the feet are tied. feet are tied. अब केज में चिड़िया के पाँव को बांधा नहीं जाता है. ऑब्वियस बात है कि एक तो केज है, ऊपर से पाँव भी बांध दिया जाए, ऐसा कोई नहीं करता. तो फीट आर टाइड भी मेटाफोरिकल है, विंग्स आर क्लिप्ड भी मेटाफोरिकल है, फीट आर टाइड भी मेटाफोरिकल है. इसका मतलब फीट आर टाइड का मतलब ये हुआ कि मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड. सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग. तो सिंस वो फिजिकली मूव नहीं करता है, तो इसीलिए वो सोलफुल वॉइस ऑफ प्रोटेस्ट को साउंड करता है, एको करता है कि वो दूर तक पहुंचे. हम नहीं पहुंच पा रहे जहां पे हम चाहते हैं कि मेरा आवाज पहुंचे, मेरा आइडियाज पहुंचे, और इसीलिए वो जोर से सुनाता है. किस लिए? टू वॉइस अगेंस्ट ऑपरेशन. So under such slavish circumstances, he opens his throat to sing. तो opens his throat to sing मतलब the bird sings loudly. The bird sings loudly so that its voice is heard far, far, far away. So 2 stanzas for today. We will continue in the next recording, which I'll be posting soon. Thank you so much for your patience.